कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दो अप्रोचेस हैं, एक यूटिलिटी एनालिसिस और एक ऑर्डिनल एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एसरटेन होगा, और ऑर्डिनल एनालिसिस आल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू होगा। तो पहले हम बात करेंगे, अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या। तो जब भी क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू दिस अप्रोच और दैट अप्रोच, व्हाटएवर अप्रोच, पहले हमें मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए। व्हाट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, पोजीशन ऑफ नो चेंज, स्टेट ऑफ रेस्ट। आप सैटिस्फाइड हो, आप उस सिचुएशन से मूव नहीं करना चाहते, आप खुश हो, संतुष्ट, satisfied. Consumer's equilibrium refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with the limited income, जो भी income है उसकी, given income, limited income, and has no tendency to change, has no tendency to change his way of existing expenditure. Consumer's equilibrium refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with the limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. वो खुश है, कोई टेंशन नहीं लाइफ में। दो अप्रोचेस है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी एनालिसिस में। अभी हम यूटिलिटी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं। नंबर वन, when the consumer spends his entire income on a single commodity, तो इसको बोलते हैं one commodity case। और दूसरा, when the consumer spends his entire income on two commodities, तो two commodity case। utility analysis, one commodity, two commodity। अब पहले हम बात करेंगे one commodity case की। तो अभी हमने अंडरस्टैंड करा मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं, वन कमोडिटी केस में क्या है। The law of DMU can be used to explain consumers equilibrium। तो consumers equilibrium की एक रिक्वायरमेंट हो गई, प्री रिक्विजिट हो गया कि लॉ ऑफ DMU के बाद ही करना चाहिए इसको, यूटिलिटी एनालिसिस। लॉ ऑफ DMU क्या था? As a consumer consumes more and more of a commodity, same commodity, as a consumer consumes more and more of a commodity, the additional satisfaction derived from every successive unit keeps on falling. The additional satisfaction, marginal utility from every successive unit goes on falling, it goes on diminishing. So law of DMU पे based है utility analysis. Therefore, all the assumptions of law of DMU are taken as assumptions of consumers equilibrium. होमोजीनियस कमोडिटी है, कंटिन्यूअस कंजम्पशंस हैं, वो सारी असम्पशन जो लॉ ऑफ डीएमयू के यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। और हम क्या कर रहे हैं? सिंगल कमोडिटी केस। अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction. The number of units to be consumed of the given commodity by a consumer depends on two factors. It depends on two factors. Number one, price of the given commodity. तो क्या factors हो गए? एक हो गया price of the given commodity will be represented by PX. Second हो गया expected utility, marginal utility from every successive unit. तो दो चीजें कंपेयर होंगी, एक marginal utility from every successive unit or price of the commodity. To determine the equilibrium point, consumer compares the price of the given commodity with its utility, the satisfaction which we derive from it. Being a rational consumer, he will be at equilibrium when the marginal utility is equal to the price paid for the commodity. तो क्या हुई इक्विलिब्रियम कंडीशन? ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुई? A consumer
consuming a single commodity will be at equilibrium when the marginal utility is equal to the price paid for the commodity. MUX is equal to PX. This is the equilibrium condition in one commodity case. Second condition, in addition, one more condition is needed to attain consumer's equilibrium, which is MU falls as consumption increases. तो indirectly वो क्या कहना चाहते हैं? Law of DMU must prevail. कह रहा है अगर आप कोई ऐसी कमोडिटी कंज्यूम करोगे जिस पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई ही नहीं होता, एक्सेप्शन होती है लॉ ऑफ डीएमयू की, तो अगर उस पर अप्लाई ही नहीं होता, ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गए, तो कह रहा है फिर आप इक्विलिब्रियम अटेन करना हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते कि दिस इज इक्विलिब्रियम. तो कह रहा है दोनों कंडीशन होनी चाहिए. फर्स्ट MUX शुड बी इक्वल टू PX और सेकंड लॉ ऑफ DMU मस्ट अप्लाई. इफ MU डज नॉट फॉल, अगर लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं हो रहा तो जरूरी थोड़ी ना आपको कि पता होगा कि नेक्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी और गिरेगी. तो आप श्योर नहीं हो सकते अगर लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं हो रहा. ध्यान से देखना, एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं वन कमोडिटी केस. ध्यान से देखना. ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर. ठीक है, अब ध्यान से देखना. यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, अच्छे लगते हैं विंटर में ऑरेंजेस, और मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, आपने एक ऑरेंज खाया तो आपको यूटिलिटी मिली, लेट अस अज्यूम 14 की, 14 यूटिल्स. सेकेंड ऑरेंज खाओगे तो यूटिलिटी 14 से ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? बोलो. सेकेंड यूनिट ऑफ ऑरेंज में यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? सर कम मिलेगी. कम मिलेगी. रीजन क्या होगा कम मिलने का मिताशा? सर सेकंड यूनिट में उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जितनी फर्स्ट यूनिट में मिली है. रीजन? सर लॉ ऑफ DMU. करेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ DMU. तो अभी समझ आया जो सिग्निफिकेंस की लॉ ऑफ DMU मस्ट अप्लाई. 14 का 13 भी हो सकता है, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट कम ही होगा. थर्ड यूनिट कंज्यूम करी 10, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी 8, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी 6. ये बस एक एग्जांपल के लिए मैं 2 से कम कर रहा हूँ, वो 1 से भी कम हो सकती है, 3 से भी कम हो सकती है, बस वो गिरती जाएगी. द एडिशनल सेटिस्फैक्शन. क्या प्राइस चेंज होता है कि एक लोगे तो 10 रुपए का, अब आपने एक और लेने गए तो अब क्या आप बोलोगे कि मैं पहले एक ले चुका हूं, तो अब आपको सस्ता मिलेगा या 10 रुपए का ही मिलेगा? सर सेम प्राइस. प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. कह रहे हैं आप एक लो, दूसरा लो, 5 लो, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. बट द एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU. अब ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड करते हैं what happens when MUX is greater than PX. If MUX is greater than PX, इसका मतलब क्या होता है? Marginal utility, the additional satisfaction which you derive from the consumption of good X is more than the price which you are paying for good X. MUX is greater than PX. इसका मतलब क्या होता है? The satisfaction derived from the consumption of good X is more than the price being paid for good X. जो आप satisfaction derive कर रहे हो, it is more than the price which you are paying for it. तो भव्या, will you consume more of the commodity or less of that commodity जिसकी satisfaction ज्यादा है than the price you are paying for it? So more.
the consumer will continue to consume more of that commodity. अब what happens when you consume more of a commodity? अब आप और कंज्यूम करोगे तो क्या होगा? आपकी एडिशनल सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर कम होगी. कम हो जाएगी. How can you be so sure? सर DMU. Because of the law of DMU. तो इसीलिए law of DMU must apply अगर आप equilibrium attain करना चाहते हैं. तो if MUX is greater than PX, तो you will continue to consume more of the commodity क्योंकि आपको satisfaction मिल रही है ज्यादा, जितना आप पैसे दे रहे हो उससे ज्यादा मिल रही है. फिर तब तक कंज्यूम करते जाओगे till the time MUX becomes equal to PX. So what happens when MUX is greater than PX? The satisfaction which we derive from the consumption of a commodity is more than the price which we are paying for it. The consumer will continue to consume more of that commodity. What happens when MUX is less than PX? ध्यान से देखना. MUX less than PX. The additional satisfaction derived from consumption of a commodity is less than the money being paid for it. जितने आप उसके लिए पैसे दे रहे हो उतनी सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रही है आपको, तो आप क्या ऐसी कोई कमोडिटी कंज्यूम करना चाहोगे? नो. तो आप अपनी कंजम्पशन रिड्यूस करोगे. फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, लेट अस अस्यूम आप 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो. फिफ्थ यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो फिफ्थ यूनिट के लिए आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे? 10 रुपए. सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही है? 6 यूटिल्स की. 10 रुपए खर्च करके 6 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है. सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है. कह रहा है कोई फायदा नहीं है, आप अपनी कंजम्पशन रिड्यूस करो. कह रहे जो मैं खा चुका हूँ वो कैसे रिड्यूस करूँ? आगे से मैं फिफ्थ यूनिट नहीं लूंगा. कह रहा अच्छा फोर्थ यूनिट पे क्या सिचुएशन है? कह रहे फोर्थ यूनिट पे जब मैं 10 रुपए खर्च करता हूँ तो मुझे 8 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो क्या मैं फोर्थ यूनिट कंज्यूम करूंगा? भव्या? नो सर. नो. मैं अपनी कंजम्पशन और रिड्यूस करूंगा. कब तक रिड्यूस करता जाऊंगा? till the time MUX becomes equal to PX. So conclusion which we can draw is when MUX is greater than PX, the consumer would like to increase the consumption of that commodity. When MUX is less than PX, the consumer would like to reduce the consumption of that commodity. ध्यान से देखना. तो वन कमोडिटी में कब तक हम कंज्यूम करते हैं? टिल द टाइम MUX becomes equal to PX. ध्यान से देखना, एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे. यही चीज मैंने आपको भी एक्सप्लेन करी है. डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, इफ MUX is greater than PX, consumer is not at equilibrium, the satisfaction which he is deriving is more. कह रहे तो अच्छी तो बात है. कह रहे बात अच्छी और बुरी की नहीं है. अगर आपको इस चीज में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है तो आप रुक थोड़ी ना जाओगे, आप और कंज्यूम करोगे ना. तो स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है अभी. ही गोज ऑन बाइंग बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट. बट हम और कंज्यूम करेंगे तो गिर जाएगी ना सेटिस्फैक्शन. तो ये आपका जस्टिफिकेशन हो सकता है कि कह रहा है जब मैं 1 यूनिट ले रहा हूं तो मुझे 14 की सेटिस्फैक्शन है और मुझे पता है कि सेकंड लूंगा तो सेटिस्फैक्शन गिरेगी, तो मैं सेकंड यूनिट लेना ही क्यों चाहूंगा? शायरी, जब मुझे पता है कि मैं सेकंड यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मेरी सेटिस्फैक्शन गिरेगी, तो मैं सेकंड यूनिट कंज्यूम ही क्यों करना चाहूंगा? शायरी. बोलो बेटा.
भव्या? सर क्योंकि वो हमें प्राइस से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है अभी भी। गुड, क्योंकि अभी भी वो मुझे जितना मैं पैसे खर्च कर रहा हूं उससे ज्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है। एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल यूटिलिटी। कह रहे मार्जिनल यूटिलिटी गिरी लेकिन टोटल यूटिलिटी तो अभी भी बढ़ रही है, 14 से 26 हो गई, और प्राइस से ज्यादा। तो आपको इसको बोलते हैं प्राइस से ज्यादा। तो अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, इसको बोलते हैं गेन। आपको गेन हो रहा है। गेन कब तक होता है? when the satisfaction derived is more than the money spent on it। यहाँ पे गेन 4 का था, गेन 2 का था, यहाँ पे जाके 0 हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब अगर मैं फोर्थ यूनिट ले रहा हूँ तो मेरा गेन -2 का है, फिफ्थ यूनिट ले रहा हूँ तो मेरा गेन -4 का है, तो नुकसान हो रहा है। तो जब तक मेरा गेन हो रहा है मैं कंज्यूम करता जा। As he buys more, MU falls because of operation of law of DMU. When MU becomes equal to the price, the consumer gets maximum benefits and is in equilibrium. When MUX is greater than PX, consumption increases. When MUX is less than PX, then also consumer is not at equilibrium. He will have to reduce the consumption. He will have to reduce the consumption of the commodity to raise his total satisfaction till the point mu becomes equal to price। तो क्या हुई फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन? mux should be equal to price and law of dmu must operate। ओके, तो ये है वन कमोडिटी। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? mu कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, प्राइस लाइन कांस्टेंट होती है। तो जहां पे mux मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और प्राइस कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और नेगेटिव तक भी जा सकता है। प्राइस लाइन क्या होगी? कांस्टेंट है प्राइस तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो जहां पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हो? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, 1 यूनिट ली, 2 यूनिट ली, 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर शोन ऑन द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम? मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो ये MU कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, प्राइस लाइन कांस्टेंट है। तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ भी अच्छे से आना चाहिए। अब नॉर्मली इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन MUX इज इक्वल टू PX। कुछ बुक्स ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं जो आपको यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, वो एक एडिशनल पॉइंट है, ध्यान से देखना। तो एक एडिशनल पॉइंट क्या है? खत्म हो चुका है वन कमोडिटी, केस आएगा आपको वैसे ही एक्सप्लेन करना है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में एक एडिशनल पॉइंट यूज होता है, ध्यान से देखना। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX और MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये क्या है? ध्यान से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। अब ये सेम है, मतलब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। ये है क्या? ये आपको टू कमोडिटी में भी हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। MUX अपॉन PX का मतलब क्या होता है? MUX हमें पता है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, PX प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब ध्यान से देखना, MUX अपॉन PX का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है satisfaction per rupee spent on the commodity। satisfaction per rupee spent on the commodity। ध्यान से देखना, अब आपने ऑरेंज खाया, ठीक है ना? ऑरेंज खाया तो ऑरेंज खाया तो लेट अस अज्यूम फर्स्ट यूनिट का MUX था 14 यूटिल्स,
प्राइस क्या था 10 रुपीज, यस और नो? बोलो, यही लिया था ना हमने एग्जाम्पल, MUX 14 यूटिल्स, प्राइस 10 रुपीज, जल्दी बताओ। यस सर। अब अगर मैं पूछूं कि MUX अपॉन PX क्या है, तो आपका आंसर आएगा 14 डिवाइडेड बाय 10, 1.4, कोई साइन नहीं, 1.4। अब 1.4 का मतलब क्या है कि 1 रुपए जब स्पेंड करते हो तो 1.4 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो सेटिस्फैक्शन पर रुपी इज 1.4। तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपए खर्च करके आपको 1.4 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। MUX अपॉन PX का मतलब समझ आया? Yes, sir. By spending a rupee on oranges, we are getting satisfaction worth 1.4, satisfaction worth 1.4। ठीक है, MUX अपॉन PX का मतलब समझा दिया। अब ये MUM क्या होता है, ध्यान से देखना। MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। 1 रुपए अगर आप स्पेंड करोगे, ध्यान से सुनना बेटा, अगर 1 रुपए स्पेंड करोगे तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? आप बताओ अमिताशा, अगर कहीं पे 1 रुपए खर्च करोगे तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? So 1 rupee. 1 रुपए की, करेक्ट। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, MUM is assumed to be 1। अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं, अगर मैं न्यूमेरिकल में बोल दूं कि MUM is 3 तो 3, बट अगर मैं कुछ नहीं बता रहा तो MUM is assumed to be 1 and MUM is always constant। assumption है, ठीक है ना, assumption है कि वो कांस्टेंट रहेगा। आप एक ऑरेंज खा रहे हो तो 1 रुपए खर्च करके कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? 1 रुपए की। आप 5th ऑरेंज खा रहे हो तो भी अगर उस पे 1 रुपया खर्च हो रहा है तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे अमिताशा? 5th ऑरेंज खा रहे हो, 1 रुपए अगर खर्च करोगे तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? So 1 rupee. आपका MUM कम नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है। इट इज एन अजम्पशन and if nothing is specified it is assumed to be 1। therefore MUX upon PX is equal to MUM if, चलो इसी के आगे we can say MUX is equal to MUM dot PX, therefore equilibrium कब होता है? when MUX is equal to PX if MUM is 1। तो MUX upon PX is equal to MUM और MUX is equal to PX, एक ही बात है। अगर MUM 1 है तो yes और no? Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ आना चाहिए। ये आपको 2 कमोडिटी में भी हेल्प करेगा। तो 1 कमोडिटी यूटिलिटी एनालिसिस में ओवर हुआ। आराम से ध्यान से ग्राफ बना के अंडरस्टैंड करके इक्विलिब्रियम कंडीशन, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन प्रॉपरली लिख के रिवाइज करें।